Good morning, everyone. My name is Abhishek Joshi, and today I'll be teaching you a topic of science, like optics we would be discussing about. But before directly jumping into the topic, I would like to ask you a simple question in here so that we can start the flow of our today's session. And later on, I will show you my presentation also so that you can see how the things would be working out. Now, the first question I have for you is, what is science? So you have to think about this question. I just wanted to see what kind of image you are having for such kind of questions. And whatever you feel like you can answer, right and wrong is not a issue for us. Okay. Since we are in the building process, so we can, whatever thought comes to our mind should be on the table, right? So as far as the science is concerned, if I have to answer this thing and I say like the knowledge that we gain through observation and experimentation. Okay, two things we are doing in here, observing things and experimenting them too. And the focus of our study, because this is the major concern in here, that what we are focusing on. So the focus of our study here is nature. Like whatever you would be discussing about in science would be somehow or the other related to the nature itself. So I think you are getting the essence of this question, that what science stands for. So with these basics, now let us move further and see what kind of domains we are having in here. Okay, because you have to categorize also now that in science, what else you do in here, like nature has to be categorized, or the things happening, the phenomena is happening in nature. So the two domains we have in here is physical science and biological science. Now, if I have to answer first what biological science stands for, but before that, you have to try to answer whatever you feel like. Okay. Now, what biological science is, simply you can say that in a layman language, that it is nothing but the study of life. Right, all the phenomena that are happening happening related to life, their working process, and all the procedures basically comes under biological science. As simple as that. So I think you are getting the point till now. The other domain that we just talked about is physical science. Now let's see what physical science stands for. So physical science can also be said as fundamental science. That is the first point you have to note in here. Now, why we are calling it as a fundamental science? Because it provides basics or fundamentals for all other sciences. Are you getting this? Like, for instance, if I say that what kind of science is mathematics is, because it also comes under fundamental science. Why? Because it is nothing but the science of logic. So whatever logic you are doing is basically mathematics, and therefore you have categorized it into physical science. So this is how the things works here. And now I would like to show you my screen and share the presentation so that we can keep on moving with the chapter light, or basically the bigger domain is optics, and we will see how it works. So let me share my screen with you. So science we have discussed till now. Types of science you have also seen here. Biological science is clear. Now also one more thing is there, students. You can know, make a note of that. Father of biology is Sir Aristotle. Okay, so a small and an important note, because in various examination you can face this question. Moving ahead. Now the question is, another important question is, what is physics? Yeah, great question, right? So whatever you think, first you have to answer that. But now if I come to the answer, and if I say simply that physics is nothing but it tells us why and how. See, these are the important terms, right? Why and how the things behave as they do and help us to predict the future of things. Right, now in order to give you a bit of example in here, suppose I take this Fevicol bottle with me. Okay, I think you can see it clearly, this Fevicol bottle. Now if I want to is open it, I have two options in the first place. Either if I pull its this cap just like this, try to pull it very hard like this and try to open it, and the other way is if I unscrew it like this. But in both the cases, in which option do you think the effort was very less and the purpose was solved very easily? So it was the second one, right? When I just unscrew it. But how did I came to this conclusion that there would be an option of unscrewing it? By using my science, right? This is what critical thinking stands for. You have various options to do a single task, but the thing is you have to opt for the task which is requiring very less effort and solving your purpose right away. So this is how these things work. तो आई होप आपको अभी तक ये पता चल पा रहा होगा कि हम फिजिक्स को कैसे डील कर रहे हैं, है ना? हम इससे प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं फ्यूचर। जैसे अगर आप सिंपली एग्जांपल लो इसका, अगर मुझे एक मोबाइल फोन होता है, उसका बैक कवर बनाना है, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता हूँ जहाँ पे बैक कवर बनाए जाते हैं फोन्स के। तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे फोन की जो बैक साइड होगी उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। वहां पे सारी यूनिट्स, जैसे हमने एक टॉपिक है हमारे पास फिजिक्स में क्लास 11th का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ये जो मेजरमेंट है बेसिकली क्या है, ये इसी के लिए स्टैंड करता है कि आप कैसे मेजरमेंट करोगे कि एक्यूरेटली आप बैक कवर बना पाओ। और ऐसा होता भी है, जैसे ही आप बैक कवर को फिट करते हो तो जहां पे कैमरा के सर्कल्स होते हैं वहीं पे वो फॉल भी करता है बैक कवर। So this is how physics works, right? And later on we will keep on observing the things. Okay, so
So the next slide is would be fine. Now the question is, what is optics? Because as I told you earlier also, today's topic would be optics. So basically what is optics is, it is nothing but the study of light. So whatever you study about light in here, like its properties like reflection, refraction, then whatever happening to the lenses, prism, all of that which concerns with light is basically the optics. Okay, but at the same time we are having a question in here that what is light? So let us try to answer this thing also. So basically, light, if I say, is a form of energy which gives us the sensation of vision. Are you getting this? So because of light only we can see things, right? Now the other question is, I said it is a form of energy. But about energy you must have heard about in your junior classes also, because हमने छोटी classes में भी 7th 8th इन सब classes में थोड़ा बहुत energy के बारे में पढ़ा हुआ है. और अगर आपके पास इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप पहले तो उसे शेयर कर सकते हैं यहाँ पे. बट अगर हम इसको बोले सिंप्लीफाई, क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी और अ कैपेसिटी टू डू सम वर्क. यानी कि किसी भी वर्क को करने के लिए जो हमें एनर्जी हमारे पास, जो एबिलिटी हमारे पास हो या कैपेसिटी हो, उसी को बेसिकली हम एनर्जी के टर्म्स में डील करते हैं. अच्छा, अगर एनर्जी की एसआई यूनिट की बात हो तो क्या होती है एसआई यूनिट एनर्जी की? वो होती है हमारे पास जूल्स, जो कि नेम्ड है आफ्टर द वेल नोन साइंटिस्ट सर जूल्स ओनली. तो आई होप यहाँ तक हम क्लियर हो पा रहे हैं लाइट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज की. बाकी लेटर ऑन अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. Now optics is divided into further branches and we will see how it works in here. So first branch we have for optics is ray optics, as you can see in here. Ray optics and the other one is wave optics. But अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हमने इनको differentiate किया. But उससे पहले ray optics is also known as geometrical optics that we should be knowing in here. And if you want to define ray optics, it is nothing but here you can see this definition and you will understand this. Here the dimension of objects, whatever objects you are dealing with, like prism, mirror, lenses, ये सारे जो objects हम use करते हैं, उनकी जो dimension होती है वो क्या होती है? much bigger होती है than the wavelength of light. आपको ये डिफरेंस समझ आ रहा होगा कैसे? अब पहले हम ना बात कर लेते हैं. सपोज अगर मैं वेवलेंथ बात करूं किसकी? विजिबल लाइट की, तो वो क्या होती है? तो विजिबल लाइट के लिए वेवलेंथ जाती है 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं 1 नैनोमीटर क्या होता है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 10⁻⁻⁹मीटर. तो अब अगर इस नंबर को आप वहां पुट करोगे और मीटर की टर्म्स में सोचोगे, तो आप देखोगे कि वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी छोटी है. और ये जो ऑब्जेक्ट्स हम जिनके साथ डील कर रहे थे, मिरर, लेंसेज, प्रिज्म, ये कितने ज्यादा बड़े थे. तो जब इस तरीके का डिफरेंस आएगा तो जो भी फिनोमिना आप देख रहे होंगे वहां पे, वो सब रे ऑप्टिक्स के अंदर आ जाएगा. ओके, सो दिस इज अबाउट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स. और यही सब काम हम किस क्लास में करते हैं? क्लास 10th में. हम इसको ऐसे भी करिकुलम के बेस पे भी डिफरेंस समझ सकते हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट वेव ऑप्टिक्स, हियर व्हाट हैपेंस, द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और वो ऑब्जेक्ट कौन है? स्लिट हो सकते हैं या होल हो सकते हैं, आर कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. अब कैसे? देखो गाइज, अगर आपको स्लिट बनाना है ना, कुछ नहीं करना आपको. सपोज ये आपके पास एक व्हाइट पेपर है, आप एक ब्लेड लेते हो और एक फाइन सा यहाँ पे स्क्रैच मारते हो, तो जो स्क्रैच आपने मारा इतना फाइन, इसमें जो गैपिंग है वो इतनी कम है कि वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से कंपेरेबल है. तो अब जो भी फिनोमिना आप यहाँ से देखोगे, चाहे वो इंटरफेरेंस के बारे में बात करो आप, या आगे जाके डिफ्रैक्शन की बात करो, या पोलराइजेशन, ये सारे फिनोमिना आपके किस में आ जाते हैं? वेव ऑप्टिक्स के अंदर. ठीक है, तो ये यहाँ पे मेन डेफिनेशन हो गई. और यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सी क्लास में हम डील करेंगे इन सब के बारे में, वो होगी क्लास 12th. तो आई होप आप on the basis of class you are also getting the difference between these two domains. Now let's move ahead with this topic and see what else we have in here. Now the question comes, व्हाट इज रे? और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास. काफी सिंपल है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरस्टैंड करना. व्हाट इज रे? सो बेसिकली इसके लिए मैं अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. सपोज आई हैव दिस लेजर लाइट विद मी. ओके, आई होप यू कैन सी इन हियर. और मैं जैसे इसको टर्न ऑन करता हूँ तो आपको दिखेगा एक डॉट होगा यहाँ पे. देखिए अभी आपको क्लियरली एक डॉट दिख पा रहे होंगे आप, जो कि मूव भी कर रहा है इजली, जैसे ऐसे मैं लेजर लाइट को मूव कर रहा हूँ. तो इससे आप क्या समझ पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ था जब मैंने बटन ऑन किया, और जो सीधा पाथ था जो यहाँ पे स्मॉल सा डॉट बन के आया, तो वो जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है बेसिकली उसी को हम क्या बोलते हैं? रे. द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रे. ठीक है, तो वही है सिंपली रे. बट अब यहीं से रे से मुझे अगर बीम पे शिफ्ट होना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपली यू कैन से दैट द बंडल ऑफ लाइट रेज, बंडल ऑफ लाइट रेज. तो इन्हीं सारी रेस को अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक रे थी ना,
ये आपने देखा है कि रेती, अब मैं यहाँ पे इसकी जो स्ट्रेट लाइन है ऐसी बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी, जिसका सिंपल एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें जो दिया भी हुआ है, जो कि क्या दिया हुआ है हमको, एक टॉर्च। तो इस टॉर्च में आप देख रहे हो इतनी सारी रेज निकल रही है, इतनी सारी रेज, तो आपने क्या करा, इसका एक बंडल बना दिया। बंडल क्या होता था, हम ऐसे रस्सी बांध देते थे किसी भी, जैसे न्यूज़पेपर है, बहुत सारे न्यूज़पेपर, आपने बंडल बना दिया उसका, तो उस बंडल को आप बीम कह देते हो। ठीक है, सिंपल डिफरेंस है। आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहीं से हमारे पास, अगर हम क्लास 10th की बात करें, तो हमने पार्ट 1 चैप्टर का स्टार्ट कर दिया है एक तरीके से। अभी तक हमने कुछ बेसिक्स देखे, बट फर्स्ट पार्ट जो है क्लास 10th में वो डिवाइडेड है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए, एंड सेकंड पार्ट इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट फिनोमिना। बट अब इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो अगर यहाँ पे एक वर्ड, पहले मैं टेक्निकल वर्ड यहाँ पे यूज करता हूँ, उसके बेसिस पे हम डेफिनेशन बनाएंगे अभी। बाउंसिंग बैक, तो मैंने एक टर्म ये लिखी, अब मैं देखो इसको कैसे यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। व्हेन अ लाइट रेज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एंड गेट बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू अ मिरर और अ सरफेस इज बेसिकली नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपने देखा यहाँ पे हमने क्या बोला, जैसे सपोज आप सन रेज लो, यहाँ से क्या हुआ, ये रेज आई, और इन रेज को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। फाइन। और यहाँ पे रेज आई, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या था, एक मिरर था। यहाँ पे क्या था, एक मिरर था। तो यहाँ पे ये स्ट्रक हुई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कुछ इस डायरेक्शन में चले गई, और इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो प्रोसेस हुआ, तो आपने देखा एयर के मीडियम में ही लाइट पहले भी ट्रेवल कर रही थी, और बाद में रिफ्लेक्शन के बाद भी वो एयर में ही है। तो आपने देखा लाइट बेसिकली इस पॉइंट पे क्या हुई है, बाउंस बैक हुई है ना। बाउंस बैक आप समझ रहे होंगे बाउंस बैक वर्ड का मतलब अब। सो इसलिए आप क्या यहाँ पे यूज कर सकते हो, बाउंसिंग। ठीक है, यहाँ पे हो गया, और यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अब धीरे धीरे करके हम इसमें नॉर्मल रे समझेंगे, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझेंगे और चीजें देखेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम पहले। ओके, इसी के साथ हमको एक और टॉपिक मिल रहा है अभी, रेगुलर वर्सेस डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्योंकि रिफ्लेक्शन तो आप समझ ही गए हो, अब हम सीधा आ जाते हैं रेगुलर में क्या होगा। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज ये सारी इंसिडेंट रे हैं, आप देख सकते हो ग्रीन वाली, और आफ्टर अ पॉइंट ये रिफ्लेक्ट हुई या बाउंस बैक हुई और इस तरीके से गई। बट आपने एक चीज देखा कि यहाँ पे भी ये पैरेलल आ रही थी एक दूसरे के, सारी की सारी, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर विदाउट एनी डेविएशन इन देयर पाथ। तो इस तरीके के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्योंकि यहाँ पे कोई भी सरफेस की वजह से प्रॉब्लम नहीं आई, और सरफेस बहुत ही क्या रहा होगा, यहाँ पे स्मूथ रहा होगा। स्मूथ सरफेस की ऐसी प्रॉपर्टी हमें दे सकता है, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में, एक ही तरफ वो है, ओरिजिनेटेड है ना। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करूं, तो आप देखो सरफेस कैसा है, इस तरीके से। अगर सिंपली हिंदी में बोलूं तो उबड़ खाबड़ सरफेस भी हम जो बोल रहे हैं, काफी रफ है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो वर्ड, रफ सरफेस। तो यहाँ क्या है, पार्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। यानी कि यहाँ से इंसिडेंट रे आई, इधर पे पड़ा, तो देखो आप इधर भी चले गई, इस वाली रे इधर चले गई, इधर इधर चले गई। तो पाथ जब ऐसा है, तो रेस भी आप देख रहे हो, आप ये सारी रेस क्या एक दूसरे के पैरेलल है, नहीं, ये आई पैरेलल थी पर गई ये डिफ्यूज होके हैं। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इसलिए हियर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इन द डेफिनेट डायरेक्शन। तो ये यहाँ पे हो जाता है रेगुलर। अब इसका हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी देख सकते हैं, सो दैट आपको और क्लैरिटी मिले यहाँ पे। लाइक दिस वन, यहाँ पे क्या बोला गया है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। अब देखो दोनों केसेस में ना सरफेस का ही फर्क है। यहाँ पे भी माउंटेन है, यहाँ पे माउंटेन है। अब यहाँ पे क्या है, जिस तरीके की लेक है, तो लेक बहुत ही क्या है, स्टिल है ना। पानी जो है ज्यादा वेवी फॉर्म में नहीं है, हिल नहीं रहा, स्टिल वाटर है। तो आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा जो माउंटेन का इमेज है वो आपको पानी में दिख पा रहा है अच्छे से क्लियरली। बट इस केस में आप देखो तो क्या आपको यहाँ पे देखो इस तरीके की शेडोज तो आपको दिख रही है, बट क्या आपको क्लियर माउंटेन दिख रहा है, नो क्लियर इमेज, आप ये सिंपली कह सकते हो। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, यहाँ इमेज क्लियर है। तो ये हो गया कौन सा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये एग्जांपल हो गया इरेगुलर रिफ्लेक्शन का या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द अदर स्लाइड। यस, नाउ कम्स द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो बेसिकली हम बात करें, ये एक हम पे सिचुएशन है जहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे कोई है एक इस तरीके की रे, जिसको मैं अभी आपको बताता हूँ वो क्या है। तो इस तरीके से, बट पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ की सिंपली। सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो यही बोलता है कि द इंसिडेंट रे, the reflected ray, and this one is nothing but the normal ray. Normal ray is the one which is perpendicular to the surface of the mirror, है ना। इसलिए हम इसको नॉर्मल बोल रहे हैं, क्योंकि सरफेस से नॉर्मली निकल रही है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो ये कौन सी है, नॉर्मल रे। तो अभी मैंने बोला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस which is this one, because their points of their incidence point or point is same, because this ray is ending at this point, this is coming from this point, and this is basically normal at the same point. तो एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड लाइज इन द सेम प्लेन। तो आप देख पा रहे हो कि पूरे एक ही प्लेन में, जिस प्लेन में इंसिडेंट रे है उसी प्लेन में ये भी है, उसी प्लेन में नॉर्मल भी है ना। जैसे आपने प्लेन्स पढ़े होंगे, जैसे ये होते हैं ना प्लेन्स, क्या होते हैं, जैसे ये मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस बनाई,
तो ये क्या हो गया एक्स वाई प्लेन, ये क्या हो गया एक्स जेड प्लेन, ये क्या हो गया वाई जेड प्लेन्स, है ना। तो ये इस तरीके से रहता है। तो ये सारी की सारी एक ही प्लेन में, यहाँ से इंसिडेंट आई, यहाँ से रिफ्लेक्टेड गई, यहाँ पे नॉर्मल है, तो देखो एक ही प्लेन पे है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ सिंपली क्या बोलता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सिंपली एंगल आई इज इक्वल टू, आप आर कह सकते हो, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस इज व्हाट सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टैंड्स फॉर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इट इज द एंगल मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे, let me note the point in here, incident ray and the normal. So this is the angle between incident ray and normal, and the angle made with the reflected ray and the normal is basically angle of reflection. So this one is the reflected ray. Now let's move ahead to the other point, because I hope आपको अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये भी 30 का होगा ऑलवेज। इस तरीके से यहाँ पे हम डील कर रहे हैं इसको। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है, वो है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, बिकॉज ये दो टर्म्स आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगी। बार बार ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे, इमेजेस आ रही होगी। तो पहले बात करें ऑब्जेक्ट की, तो एनीथिंग, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से लाइट खुद की आए या फिर उससे रिफ्लेक्ट होके आए, वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। जैसे इसके अंदर हम पे दो टाइप्स के और होते हैं, एक होते हैं कौन से, लुमिनस ऑब्जेक्ट, जिनके बारे में हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, एंड देन अदर वन इज नॉन लुमिनस। ओ सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, NOUS, लुमिनस। तो ये हो गए दो तरह के ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम अभी थोड़ी सी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, बट आई थिंक ऑब्जेक्ट पॉइंट इज क्लियर टू अस नाउ। व्हाट इज इमेज? तो इमेज के लिए हम यूज कर सकते हैं वर्ड, इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस of an object when light rays either reflects through a mirror or refract through a lens. So then the image formed is basically, then the point where the rays intersect is known as the image of the object. Suppose आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, अभी हम धीरे धीरे करके हम कुछ मिरर्स पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं प्लेन मिरर की ना, सपोज ये प्लेन मिरर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, इस तरीके से। अब इस ऑब्जेक्ट की रेज जाएंगी यहाँ से, ठीक है, ये तो स्ट्रेट है तो ये स्ट्रेट जाएगी, तो ऐसे हो जाएगी बेंड, इस तरीके से रेज जाएगी, इस तरीके से जाएगी। यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे क्योंकि ये प्लेन मिरर है, ये यहाँ पे एंगल आई एंगल आर के इक्वल तो बिल्कुल होगा ही होगा। तो जब आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन पे, यहाँ पे एक बनेगी इमेज, जिसको हम बोलेंगे ये इमेज है। तो ये ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो कि प्रोड्यूस हुआ है या तो रिफ्लेक्शन के बाद या तो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज के बाद। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे, और इमेज के भी टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर भी आपको दो टाइप मिलेंगे, कैसे, रियल इमेज के और वर्चुअल इमेज के। ठीक है, तो ये है। और ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हम एक पॉइंट और पढ़ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट भी होते हैं और हम पे क्या होते हैं, एक्सटेंडेड भी होते हैं। ये कैसे हो गया, देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत ही, आपका साइज जिनका बहुत स्मॉल है। सिंपली आप ये कह सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बल्ब की बात करूं, कोई छोटा सा बल्ब हो जो कि पॉइंट साइज का आपको दिख रहा है, तो ये बहुत पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हो गए। बट अगर मैं एक ट्यूबलाइट की बात करूं जो कि इतनी ऐसे बड़ी सी ट्यूबलाइट है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि इसका साइज बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ओके, तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। आई होप हमें यहाँ तक क्लियर हुआ है। like as I was saying that there are two types of objects like luminous and non-luminous ones, so we can see the difference between these two also. Now luminous objects are the ones which emit out lights of its own, जिनकी खुद की लाइट होती है। लाइक सन की अगर हम बात करें तो इसमें से खुद की लाइट निकल रही है, अगर हम टॉर्च की बात करें तो यहाँ से लाइट निकल रही है। अच्छा, ये क्या एग्जांपल है गाइस, ये बेसिकली सपोज हमारे पास क्या है, फायर फ्लाई। तो आपने देखा होगा, या आप उनकी, जैसे हम हिंदी में भी क्या बोलते हैं, जुगनू। तो जो जुगनू होते हैं, इनमें से क्या होते हैं, लाइट चमकती रहती है ना इस तरीके से। तो बेसिकली इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए, ये होता है बायोल्यूमिनी सेंस। ठीक है, तो जो कि केमिल्यूमिनेसेंस के अंदर ही फिनोमेना आता है। तो ये बायोल्यूमिनेसेंस में क्या होता है, इसी प्रोसेस की वजह से ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये अपनी लाइट खुद से रिफ्लेक्ट प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और एमिट आउट भी कर सकते हैं। ये हो गया। बट अगर हम नॉन लुमिनस की बात करें, तो ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं है, बट जो कि हमको विजिबल हो पाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जब लाइट इन पे पड़ती है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट आउट करते हैं, जैसे बुक्स, टेबल, या हम खुद ह्यूमन बींग्स हो गए। तो अगर आप लाइट पूरा डार्क रूम में जाओगे तो आप दिखोगे ही नहीं क्योंकि आपकी खुद की लाइट है नहीं। तो इसलिए हम क्या हो गए, नॉन लुमिनस। तो सिंपल सा डिफरेंस था। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, सॉरी। अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ रियल इमेज क्या होती है, अगर हम सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोलूँ ना मैं आपको, जो कि एक्चुअली
एग्जिस्ट कर रही होंगी। पहले आप इस डिफरेंस को समझना। और वर्चुअल इमेज जो होंगी वो सिर्फ क्या होंगी, इमेजिनरी होंगी, आप ऐसे कह सकते हो, जो कि नो रियल एग्जिस्टेंस। सो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो ना, रियल इमेज में, व्हेन द लाइट इज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट्स एट अ पॉइंट, यानी भी कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे रे जो भी जा रही है ना वो एक्चुअली पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। इंटरसेक्ट तो देखो उस केस में होगी, बट ये एक्चुअली यहाँ पे मीट कर रही है ना। यहाँ पे कोई आपने इमेजिनरी या कोई भी एक्स्ट्रापोलेशन नहीं की, बट इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज आप क्या करते हो, आप एक्स्ट्रापोलेट करते हो, इस तरीके की डॉटेड लाइन यूज करते हो आप। अभी हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे किस तरीके से। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या रखा हुआ है, प्लेन मिरर। तो आपने देखा कि कैसे प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बन रही है, क्योंकि आपने देखा था यहाँ अगर हमने ऑब्जेक्ट खड़ा किया था, यहाँ प्लेन मिरर था, तो हमने एक रे तो इस तरीके से ली थी जो कि बाउंस बैक हो गई, एक रे हमने इस तरीके से ली जो कि ऐसे जा रही थी। बट आपने एट द एंड क्या करा, इसको भी एक्स्ट्रापोलेट किया, इसको भी एक्स्ट्रापोलेट किया, तब जाके आपको यहाँ मिरर के पीछे उसकी इमेज दिखी। तो यहाँ पे इमेज सिर्फ अपीयर्स टू बी एग्जिस्ट होती है, ठीक है, वहां एक्चुअली मीट करिए। यानी कि सिनेमा हॉल में क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, इस स्क्रीन पे एक्चुअली मीट हो रही है और इंटरसेक्शन हो रहा है, तब आपको यहाँ पे जो भी चीजें दिख रही हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है रियल इमेज का। और later on we will see various cases of image formation for various mirrors, and then you will also learn about more about real image and virtual image. So let's move to the other point in here right now. लाइक दिस फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये तो मैं आपको एक दो बार एग्जांपल भी दिखा चुका हूँ। उसी तरीके से चीज है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसी को देखो गाइस, ये जो हमने एक्स्ट्रापोलेशन किया ना, और अच्छा इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि व्हाई वी जस्ट एक्स्ट्रापोलेटेड देम, इन रेस को एक्स्ट्रापोलेट करने की जरूरत क्या पड़ी। तो गाइस इसका आंसर ये है, क्योंकि अगर आप रेस को फॉलो करो, ये इंसिडेंट थी, ये ऐसे गई, ये भी इंसिडेंट थी, ये भी रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई। अब मुझे पता है कि इमेज तो सिर्फ तभी बनेगी, इमेज फॉर्मेशन कब होगा, जब रेस क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी या एक्चुअली मीट करेंगी। तो अगर मैं इसको आगे एक्स्ट्रा ले जाता हूँ रे को, और इसको भी आगे ले जाता हूँ, तो ये दोनों किस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। इवन जैसे आपको पता है कि दो पैरेलल रेस कभी मीट नहीं कर सकती, तो दो रेस जो ऐसे जा रही है वो कैसे मीट करेंगी, कोई पॉसिबल ही नहीं है, चाहे आप इन्फिनिटी तक चल जाओ ये मीट नहीं करेंगी। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी नीडेड टू एक्स्ट्रापोलेट दीज रेज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अगर मैं इनको इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा तो एट अ सर्टेन पॉइंट ये यहाँ पे मीट कर जाएंगे, और जैसे ये मीट करेंगे तो आपको आपका इमेज मिल जाएगा। बट ये इमेज आपको किस रीजन से मिली, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रापोलेशन से। और एक्स्ट्रापोलेशन क्या कोई रियल प्रोसेस था, नहीं, रियल प्रोसेस नहीं था, इमेजिनरी था। इसी वजह से ये इमेज कौन सी है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है, यानी कि सीधी खड़ी होती है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होती है। बट वर्चुअल इमेज जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है ना, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म होती है। तो वो जब आप फॉर्मेशन उनका करोगे, आप अपने आप इस पॉइंट को प्रैक्टिकली देख पाओगे। सो लेटर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड सी। ओके, यहाँ पे गाइस एक छोटा सा केस स्टडी है, या आप कह सकते हो छोटी सी एक्टिविटी है, जिससे आप प्रूव कर सकते हो कि जब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, जैसे पीछे केस में एक मैन खड़ा था, तो उसका डिस्टेंस प्लेन मिरर से जो है वो इक्वल है उसकी इमेज का डिस्टेंस प्लेन मिरर से। Okay, like here we have the object as O and image as I. So now we need to prove that the distance between O and B is equal to the distance between I and B. तो आप आई थिंक आपको समझ आ गया है। तो इसी प्रोसेस को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो रे डायग्राम स्टार्ट करेंगे, फिर हम ये दो ट्राइंगल्स जो है यहाँ पे छोटे छोटे, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हमको एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी पता है, जो कि है सीपीसीटी, जिसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की सारी चीजों को हम इक्वल बता सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपने अर्लियर क्लासेस में भी देखा हुआ है, क्या करते हैं हम, सिंपली कोई तीन प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। पहले तो हम यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे। पहले हम क्या बोलेंगे, ओ सी एन, यानी कि ये जो एंगल है इसको हमने क्या मान लिया, थीटा एंगल मान लिया। पहले हम क्लियर कर देते हैं, इस एंगल को हमने थीटा मान लिया। अब इसको थीटा माना है तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, आपको पता है आई इज इक्वल टू आर, इस वजह से ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप पहुंच पाए। अब उसके बाद देखो गाइस, यहाँ पे क्या बोला ना, आई सी एन डैश जो है, आई सी एन डैश, यानी कि जो आप ये वाला एंगल देखोगे ना, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, आपको रीजन बताना है। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसलिए इक्वल होंगे। आपको पता होगा ना, जैसे दो लाइन इंटरसेक्ट करिए तो उनके ये एंगल्स इक्वल होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं, तो यही वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। ये इक्वल हो गया। अब गाइस यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा ये एंगल की ये एंगल भी इक्वल होगा। कैसे होगा, ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे सपोज ये दो रेस पैरेलल हैं और बीच में से एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो आपको पता होगा ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एंगल इसके इक्वल होगा, कौन सा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो आई होप यहाँ तक पॉइंट हमें क्लियर हुआ। उसी तरीके से ये भी एंगल थीटा हो गया, क्यों, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा, क्योंकि ये दो क्या है, पैरेलल रेज है, और बीच में कौन सा है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा उसके बाद गाइज ये जो एंगल बचेगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो गाइज ये पूरा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये इतना सा एंगल क्या होगा, इसमें से ये 90 में से ये माइनस कर दो, तो ये एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब हमको जब प्रूफ करेंगे, हम जब दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे, तो ओबीसी आईबीसी इक्वल हो गया,
ओबीसी आईबीसी, क्योंकि ये क्या है दोनों ईच 90 डिग्री। ओसीबी आईसीबी भी इक्वल हो गया, यानी कि ये एंगल भी इक्वल हो गया, कैसे ईच 90 माइनस थीटा। और जो बीच में बीसी है वो तो दोनों में कॉमन है, तो वो भी इक्वल है। तो बेसिकली क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ए ऐसे क्राइटेरिया से हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद तो गाइज ये ओबी जो होगा ये आईबी के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि कैसे एक प्लेन मिरर के केस में जो आपका डिस्टेंस है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज इक्वल टू द इमेज एंड इट्स इमेज एंड द मिरर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम। अब यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है क्या, लेटरल इन्वर्जन। तो मैं विद डेफिनेशन अगर इस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करूं, तो व्हेन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट appears to be the left side of the image and the left side of the object appears to be right side of the image, and this phenomena of change of sides between the object and its image is basically known as lateral inversion। तो आई होप आपको पॉइंट समझ आया होगा। अगर सिंपली हम बोले तो क्या होता है कि आपका जैसे आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे और अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे, तो मिरर की जो मतलब मिरर में जो आपकी इमेज होगी उसका लेफ्ट हैंड आपको दिखाई देगा खड़ा हुआ, है ना। तो आप इसको ऐसे समझना, तो आपका राइट इमेज का लेफ्ट, आपका लेफ्ट इमेज का राइट, यही लेटरल इन्वर्जन है। यहां तक तो चलो ये बात ठीक थी, बट अगर आप इसको और केसेस में लाओ, अल्फाबेट्स में लाओ, तो ये हर जगह पे फॉलो हो रहा है। तो अब आप इसको देख पाओगे, मैं यहाँ पे क्या करा, मैंने एक लेटर लिया, क्या लेटर लिया, डी। डी को आप ऐसा करके भी देख सकते हो, आप एक नोटबुक में डी लिखो और उसको आप इमेज मिरर के सामने लाके देखो, तो आपको दिखाई देगा डी कुछ इस तरीके से बना हुआ मिरर में उसकी इमेज। तो अब आप इसको पहले तो समझेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन हमें करनी क्या है, पैसे हम पहले हम कंस्ट्रक्शन समझते हैं। तो क्या होगा, आपको इसके लिए ना एक प्रोसेस सिंपल सा फॉलो करना है कि जो पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, इस स्टेटमेंट को याद करके हम इसकी इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये जो डी का कर्व है, ये मिरर के पहले पास आ रहा है, और बाद में जो ग्रीन और ब्लू डॉट है यानी कि ये जो लाइन है, तो जो चीज मिरर के पहले पास आ रही है वो पहले कंस्ट्रक्ट होगी, यानी कि इसका जो कर्व है आपको पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। ये कर्व आपने पहले यहाँ कंस्ट्रक्ट कर दिया, और इस तरीके से होगा। देखो गाइस, ये पॉइंट पहले यहाँ पहुंचा तो इसलिए ये पहले यहाँ ड्रॉ हो गया, फिर ये बाद में पहुंचा तो ये थोड़ा सा आगे ड्रॉ हुआ, ये बाद में पहुंचा ये थोड़ा और आगे। तो आप समझ रहे हो इस तरीके से, इस तरीके का कर्व इस तरह का क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन ये है। इसी तरीके से ग्रीन बाद में पहुंचेगा, ग्रीन यहाँ ड्रॉ होगा, ब्लू बाद में पहुंचेगा, ब्लू यहाँ ड्रॉ होगा, तो यानी कि डी तो ऐसे बनेगा ना। तो इस तरीके से आपका डी बन गया। तो अब आपको समझ आ गया केस। अब इसको आप अप्लाई करके देखो इस रेड में। देखो डी पहले यहाँ आ रहा है, पहले आप ये कर्व बना दो, फिर ये लेटर आ रहा है ये बना दो, तो आपका यानी कि पहले डी बन गया। फिर आपने ई भी उसी तरीके से बना देना है, आर भी उस तरीके से बना देना है। जैसे अगर मुझे अपना नेम लिखना हो, मैं अगर चाहूँ अपना नेम, नॉर्मली मेरा नेम हो गया ये, ठीक है, ये हो गया, बट ये तो नॉर्मल केस में है। बट अगर मैं चाहूँ इसकी मिरर इमेज बनाना, तो मिरर इमेज में मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ABHISHE के। तो अगर हम इसको देखेंगे मिरर में, तो आपको बिल्कुल सीधा अभिषेक दिखाई देगा। तो ऐसा एक्टिविटी आप भी करना, आप अपने नेम के साथ या रैंडमली कोई और भी लेटर्स यूज करना, और आप उसका मिरर इमेज लिख के देखना, ठीक है। नॉर्मल तो आपको लिखना आता है, आप उसकी मिरर इमेज बनाओ, और सो दैट उस मिरर इमेज को अगर आप मिरर के सामने ले जाओ तो वो सीधी हो जाए। ये आपका टास्क रहेगा एज ए होमवर्क में। सिमिलरली ऐसे भी अब गाइस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है। अब यहाँ पे ना क्या हुआ कि पुलिस यहाँ लिखा हुआ है, फिर लगा हुआ है मिरर, तो आप देखो किस तरीके की इमेज बन रही है, डाउनवर्ड्स में इन्वर्ट हो रही है ना। वो तो वो ही रह गया, एल इस तरीके से हो गया क्योंकि ये लाइन पहले यहाँ पहुंची है, तो ये एल बन गया, LICE, ठीक है। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी देख सकते हैं क्योंकि काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। तो देखो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, द फिगर अलोंग साइड शोज द इमेज ऑफ अ क्लॉक एज सीन इन द प्लेन मिरर, द करेक्ट टाइम इज। गाइस अब आपको ये जो दे रखी ना यहाँ पे ये इमेज है, ये एक इमेज दे रखी है किसी क्लॉक की, है ना, किसी क्लॉक की। तो अब आपको ये बताना है एक्चुअल में क्या टाइम हो रहा होगा, क्योंकि क्लॉक में डिफरेंट होगा ना। अब आपको पता है मिरर, जो मिरर है वो लिटिल इन्वर्जन करके आपको दिखाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिमिलरली ऐसे ही क्लॉक बनाओगे, बस कुछ मत करो। ये निडल इधर है तो यानी कि इसको राइट में, तो लेफ्ट की तरफ ले जाओगे आप, इस तरीके से ले गए। और ये इधर को जा रही है तो इसको आप इधर को लाओगे, तो इधर को आप लाओगे। अब आपको ये एरोज भी समझने हैं, यहाँ ये इस एरो पे थी तो यहाँ पे इस एरो पे आएगा, यानी कि क्या टाइम हो जाएगा, इस तरीके के टाइम को आप क्या बोलते हो, 9। ये ऐसा टाइम होगा ना, तो 9 ये क्या हो गया, 9 बज के, देखो 9 का ऑप्शन ही है कि पहले तो ये करेक्ट हो जाएगा, और ये कितना है, 10 20 25। तो ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट हो गया, 9:25 करेक्ट टाइम। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा हमें। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे आपको दे रखा है एक पॉइंट, एक कुछ ऐसे लेटर दे रखा है और बोला है कि प्लेन मिरर में कैसा दिखेगा। तो गाइज अब आप इसको भी अगर आप प्लेन मिरर में लिखना चाहोगे, सपोज 8OY, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई जैसा फॉर्मेशन वहां है, YATU। तो यहाँ पे अगर मैं मिरर रखता हूँ तो पहले आपको पता चलेगा कौन सा वर्ड यहाँ आना चाहिए, यू आना चाहिए। अब देखो यू इस तरीके का वर्ड है, अगर राइट को लेफ्ट भी कर दोगे तब भी यू ही बनेगा, है ना। कुछ ऐसे लेटर होते हैं, जैसे एम हो गया, इसका राइट लेफ्ट सेम ही है, बट एन का क्या सेम होगा, नहीं एन का सेम नहीं होगा। तो इस तरीके के कुछ लेटर्स आपको समझने पड़ेंगे, एच का सेम ही होगा, आई का सेम ही होगा, है ना। और जिसका सेम नहीं होगा उसके एग्जाम्पल देखें तो एस का सेम नहीं होगा, ठीक है, और जेड का सेम नहीं होगा,
एन का सेम नहीं होगा जैसे हमने देखा, पी का सेम नहीं होगा, ठीक है, इवन क्यू का भी सेम नहीं होगा क्योंकि क्यू का जो ये पार्ट है इधर आ रहा है तो उसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से चीजें हैं। तो ये हो गया, अब यू आ गया तो अब उसके बाद टी भी आ जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से जो आंसर हो। तो गाइस आप देख सकते हो कि पहले, दूसरे और तीसरे में, तीनों में देखो गाइस स्टार्टिंग कैसी हो रही है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो यू टी ए वाई ओ ए, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। तो इतने इजी क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। मैं ये यहाँ साइड स्लाइड कर देते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें अगर गाइस, तो यहाँ क्या बोला हुआ है कि राहुल इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। ठीक है, हम सपोज एक बॉय को ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे राहुल है जो, तो उसने अपनी इमेज को देखा प्लेन मिरर में। द डिस्टेंस बिटवीन राहुल एंड हिज इमेज, राहुल एंड इन मिरर, गाइस ये ऊपर से स्लाइडर आ रहा है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। मिरर और इमेज के बीच में, अच्छा सपोज यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी, तो हमको गाइस क्या बोला हुआ है, मिरर और इमेज के बीच में, तो यानी कि ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, 4 मीटर। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अब गाइस बोला हुआ है कि अगर ये 1 मीटर मिरर की तरफ जाता है, तो देन द डिस्टेंस बिटवीन राहुल एंड हिज इमेज, तो गाइस राहुल और उसकी इमेज के बीच का डिस्टेंस आपको पूछा है, यानी कि 1 मीटर बाद राहुल यहाँ पे होगा। तो गाइस आप समझ के देखो, 1 मीटर बाद जब राहुल यहाँ पे होगा तो ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा उसके पास, पहले ये टोटल कितना था, वहां 4 था तो ये भी 4 होगा, 1 मीटर जाने के बाद ये 3 मीटर होगा, बट जब ये आगे जाएगा तो इसकी इमेज भी आगे आएगी, क्योंकि आप ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि डिस्टेंस जो होता है सेम होता है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड मिरर एंड इमेज एंड मिरर। तो ये भी कितना होगा, 3 मीटर होगा। बट अब हमको राहुल और उसके इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा है, तो वो टोटल कितना है, 6 मीटर, 3 + 3, तो ऑप्शन थर्ड वुड बी करेक्ट। तो अब अगर हम मूव करें नेक्स्ट पॉइंट पे, हमको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है गाइस, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 75 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अ मिरर। ओके, हम बनाते हैं, एक मिरर बनाते हैं। अब ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, अब यहाँ पे हम और भी ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल रे होगी, एक रिफ्लेक्टेड भी होगी, इस तरीके से चीजें हो रही होंगी। तो हमको बोला हुआ है इंसिडेंट मेक एन एंगल 75 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द मिरर। गाइस सरफेस ऑफ द मिरर तो ये हुआ ना, ये जो है ये मिरर का सरफेस, तो इसके साथ गाइस 75 डिग्री एंगल है। पहले तो आपको ये देखना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको गलती से, सपोज आप इसको 75 समझ लो तो गलत हो जाएगा, है ना। वो तो यहाँ पे ऑप्शन सही है कि 75 नहीं है, वरना ऑप्शन अगर किसी ने इसको 75 समझ लिया तो आप इसे भी 75 मारोगे, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बट फिलहाल यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा कितना, 90 डिग्री माइनस 75, क्योंकि ये पूरा क्या है, 90 है। तो 90 माइनस 75 कितना हो गया, 15 डिग्री। तो यानी कि गाइस ये आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे, बेसिकली ये वैल्यू होगी 15 डिग्री। अब आपको पता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो ये भी कितनी होगी, 15 डिग्री। तो यानी कि आपका ऑप्शन 2 जो है करेक्ट हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है 15 डिग्री। तो आई होप यहाँ तक हम क्लियर कर पाए हैं टॉपिक्स को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। तो गाइज यहाँ से स्फेरिकल मिरर स्टार्ट हो रहा है। नाउ दिस टॉपिक वुड बी द अदर पार्ट, एक दूसरा सेगमेंट होगा हमारे पास इस चैप्टर का, सो दैट वी कैन डिस्कस दिस इन अवर नेक्स्ट क्लास. So I hope till this point, whatever we have discussed about mirror and its properties like reflection, I think you all are getting that point very clearly. Now in homework, you try to do some exercises like that, and that later inversion cases that I told you, just practice that. And later on in the next class, we will solve few questions more related to that, and we will also start our next topic. Thank you so much for watching.